Hello viewers, I am Deepthi. Now I am going to solve ICSE Class 10 Physics paper for the year 2026 जो आपने आज ही दिया है starting with section A question 1 में MCQs. So MCQs में first MCQ is for a body to be in dynamic equilibrium. Momentum should be zero, no momentum should be constant. Acceleration should be zero, yes, acceleration should be zero. Kinetic energy nahi, velocity and momentum both should be constant, not equal to zero. Energy transformation taking place during photosynthesis in plants is light मिलेगी तो काम होगा light energy to chemical energy. The velocity ratio of a block and tackle system of two pulleys with effort in the upward direction, not in the convenient direction, inconvenient direction. तो इस केस में ना VR हमारा n+1 यानी एक इंक्रीज हो जाता है तो it will become 3. So option number C is correct in this case. Now fourth part, medium 1 is given and here 30 is given with the surface, but we have to consider the angle of incidence with the normal only. So 90 minus 30 it will become 60 and here also it will become 45. So angle of incidence and angle of refraction, we have to count the refractive index of medium B with respect to medium A. So it will become sin I upon sin R. So sin 60 upon sin 45. So it means option number D is correct. Now fifth, when a blackened bulb thermometer is moved beyond the red region of the visible spectrum, there is a rapid rise in temperature. This is due to the presence of infrared radiations because of the strong heating effect of infrared radiations. A fast moving cyclist stops paddling on reaching a hilly track. If he continues to move with the acquired energy, then assuming no loss of energy, kinetic energy constant, potential energy constant, total mechanical energy increases. No. So his total mechanical energy remains constant according to law of conservation of energy. The distance V of a virtual image formed by a lens of focal length 15 centimeter. It is mentioned that this image is virtual only, never exceeds a certain finite value. Then this value will be, this is the most controversial MCQ, because if we are taking into consideration in this case so concave lens, because virtual image we all know that it is a concave lens, मतलब होगा ही concave में, virtual हमेशा ही बनती है. तो अगर if we are taking only concave lens तो हमारा image कहाँ बनता है, in between O and F. तो O and F means focal length 15 है तो it will be less than 15 only. बट इफ वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इसमें कॉन्वेक्स लेंस, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन की फाइनाइट वैल्यू. तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फाइनाइट वैल्यू तो नहीं होती, कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट तो हमारा O और F के बीच में है बट इमेज तो हमारी 2F के बियॉन्ड 2F के आसपास कहीं पर भी हो सकती है. तो अगर हम 2F लेंगे तो वो 30 के आसपास पहुंच जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ सकता है, क्योंकि 30 को जब हम कंसिडर करेंगे तो 15 ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाएगा. बट इसमें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है तो हमें कॉन्वेक्स को कंसिडर करना चाहिए. इफ वी आर कंसिडरिंग कॉन्वेक्स तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. बट इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग बिकॉज फाइनाइट वैल्यू जानबूझ के दिया गया है तो कॉन्केव है, तो कॉन्केव में हमारा O और F यानी कि लेस देन 15 सेंटीमीटर रह रहा है. बट अगर हम कॉन्वेक्स में इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाकर देखेंगे तो हमारी फोकल लेंथ 15 पे आ रही है. तो अगर हम कॉन्वेक्स को कंसिडर करेंगे तो फिर से हमारा आंसर लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ही आ रहा है. आप उसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं. बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस अलग अलग टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, इससे मैं इसमें कोई फाइनल आंसर देना ही नहीं चाहूंगी. इन 8 पार्ट, टाइनी एयर मॉलिक्यूल स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट. तो ये तो हमें पता है कि यस है, क्योंकि स्कैटरिंग है, ब्लू लाइट की हमारे पास लीस्ट वेवलेंथ होती है तो वेवलेंथ लेस आ गई, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इंक्रीज हो गई. तो ये स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग आपको पता ही है आई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4. So this is correct.
Now second is refractive index of a medium is greater for blue light than for red light. This is also correct. तो both assertion and reason are true, but हम जब scattering का portion पढ़ते हैं, I am not talking about delta, I am talking about scattering. तो scattering में कहीं पर भी आपका refractive index का mention नहीं आया, although we all know कि scattering और refract मतलब wavelength और refractive index आपस में तो interconnected हैं ही हैं, लेकिन अब इसमें हमें R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्कैटरिंग में हमने कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेंशन नहीं किया हुआ, लैम्डा से हमारी बुक में दिया है, बट हम सबको पता है कि लैम्डा और वो आपस में जुड़े हुए हैं, बट हम इसमें नहीं मान सकते. Now coming to ninth part, identify the lamp L1, L2, L3, L4 whose failure would not interrupt the power supply to the other lamps. अगर L1 जाएगा तो obviously आगे सप्लाई कैसे जाएगी, L3 से भी सेम होगा, L4 अगर गया तो पूरा सर्किट ही ओपन हो जाएगा. तो सिर्फ L2 है कि जिसके जाने से L1, L3, L4 सारे काम करते रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर B is correct in this case. Now coming to 10th part, equal volume of water are added to three cylindrical jars A, B and C of same height and radius respectively. Order दिया हुआ है आपको. If you blow air into the mouth of these jars, which tube will produce the shrillest note? Shrill means frequency. So more frequency. Now we know that frequency is inversely proportional to radius. So 1 upon radius हम यहाँ पर consider करेंगे. फॉर्मूला आपने देखा हुआ है. तो हमें shrill voice चाहिए, means frequency ज्यादा चाहिए. If we want to increase frequency, we have to reduce the radius. तो reduced radius किसका है? RC is greater than RA is greater than RB. यानी कि least radius is associated with B only. So here B option is correct in this 10th part. 11th is a metallic wire is stretched in such a way that its new length becomes twice the original length. How does its specific heat capacity change? अब heat capacity वैसे तो यहाँ word नहीं होना चाहिए था, but यहाँ specific resistivity की बात हो रही है, but क्योंकि specific तो है ना, तो वहाँ काउंसिल की या टीचर जिसने बनाया उसको ये चाहिए कि बच्चे को specific word का मीनिंग पता होना चाहिए, means unit length के लिए हो रहा है. तो इफ इट इज यूनिट लेंथ तो वैसे भी वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इट मींस उस पे चाहे हम लेंथ को ट्वाइस करें कुछ भी करें इट विल रिमेन द सेम. तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट. इन 12th पार्ट, द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ टू रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 upon R1 1 upon R2 लेते हैं, इट विल बिकम R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने के बाद यू विल गेट दिस ओनली. तो डायरेक्टली भी हम कई बार इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं. In 13th part, the diagram below shows the top view of the wire A shown by cross. तो ये आपको दिखाया गया है. Carrying current into the plane of the paper. Right hand thumb rule लगाएंगे. Into the plane of paper मतलब ये जा रहा है. तो your fingers will point in the clockwise direction. Which of the compass is correctly aligned with the magnetic field produced by current carrying wire? तो आपका 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, दोनों अपोजिट है, दोनों तो हो ही नहीं सकते simultaneously, तो only 1 is aligned. Three substances A, B and C of same mass, ये क्वेश्चन में गिवन है, same mass are present at the respective melting points on heating. If they melt completely in 5 minutes, 7 minutes, 3 minutes, तो सबसे ज्यादा टाइम B ने लिया है. Then which substance is the highest specific latent heat? तो हाईएस्ट में जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू ml हम हीट का फॉर्मूला लेते हैं और P इंटू टी भी इसी का फॉर्मूला है. तो इन दिस केस मास इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिया है तो मास को हम इग्नोर कर देंगे, और इसके अलावा पावर भी सेम रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट है तो उस पर भी नहीं है. तो यानी कि लेटेंट हीट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जिसका टाइम ज्यादा है उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ज्यादा हो जाएगा इस केस में. तो आएगा ऑप्शन ए बी, सब्सटेंस बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको मोस्ट हीट रिक्वायर्ड है तभी उसको ज्यादा टाइम लग रहा है. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 15, एन एटम ऑफ लिथियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन. तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन. तो 3 + 4 इट मींस 7. So 7 is the correct answer, option number C. Now coming to question number 2, a car is moving in uniform circular motion, घूम रहा है. The direction of friction between the tires and the path is, आपको पता है यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दोनों को ही कंसीडर करना है, एंड फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कब होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन. अब क्योंकि सर्कुलर मोशन में है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा
उसको अपोज करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। टेंजेंशियल टू द पाथ तो नहीं हो सकता, मेरे अकॉर्डिंगली टुवर्ड्स द सेंटर ही करेक्ट होना चाहिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स वेवलेंथ डेंसर टू रेयर में जा रहा है, यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर v इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी इंक्रीज ही होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। द लिड ऑफ ए कैलोरीमीटर मिनिमाइजेज हीट लॉस बाय, किससे होता है, इसमें कन्वेक्शन के लिए हम लिड लगाते हैं जिसमें 2 होल्स रहते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स वेव फॉर्म। A substance whose resistance become almost negligible at a temperature near absolute zero is called a superconductor. Dash radiation deviates minimum in magnetic field. Alpha radiation because वो heaviest होते हैं, बीटा से ज्यादा heavy हैं, इसीलिए उनका deviation जो है वो minimum हो जाएगा। Now state 2 factors on which position of center of gravity of a body depends. तो it depends on geometrical shape of the body and distribution of the mass of the body, कि किस तरह से mass distribution, इतने सारे examples आप दे सकते हैं। Now third part is case 1. Lata cuts a potato into 2 halves using a cutter which belongs to a class 2 lever. In class 2 lever हमें पता है क्या फलक्रम एक साइड में है, लोड इज इन बिटवीन और एफर्ट जो है वहां पर लता पुट कर रही है अपना एफर्ट। तो शी नीडेड एफर्ट E1, तो इस केस में हमने मान लिया कि E1 एफर्ट लग रहा है। सेकेंड केस में देन शी कट्स 1 half ऑफ दिस पोटैटो अगेन पुट, but this time she needed effort E2 and it is given in the question that E1 is greater than E2 क्योंकि ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो जिसके केस में एफर्ट ज्यादा लग रहा है उसके हमारी लोड आर्म एफर्ट आर्म के ज्यादा पास आ जाएगी। इन विच केस वॉज द पोटैटो क्लोजर टू हर हैंड, यानी कि लोड और एफर्ट का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा अप्लाइंग द एफर्ट। नॉर्मल रिएक्शन द सरफेस ऑफ द पोटैटो वो से सेम कहते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इस केस में हमारा केस 1 करेक्ट आ जाएगा क्योंकि केस 1 में पोटैटो क्लोजर टू हर हैंड होगा तो लोड और एफर्ट का डिस्टेंस कम हो जाएगा। यू कहें कि डीई और डीएल में डिस्टेंस कम हो गया जिसकी वजह से एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा। सो बी पार्ट में हमने यही रीजन एक्सप्लेन करना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब कोई भी मुझे बताए, आप लोग कह रहे हैं पेपर इजी है, पेपर इजी है स्टूडेंट्स के लिए, हाउ दिस पेपर इज इजी, कहाँ दिया है बुक में ये ग्राफ? ठीक है, हमें ग्राफ की नॉलेज है, हमें पता चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्लास 11 और 12 के टीचर्स को तो इजी लगेगा, बट कहाँ दिया गया ये ग्राफ? बट आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि इमेज डिस्टेंस जो कि वाई एक्सिस पे दिया गया पॉजिटिव है, यानी इमेज हमारी पॉजिटिव रह रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारे पास नेगेटिव है, v हमारे पास पॉजिटिव है। मींस हम आइडिया लेना पड़ रहा है ना कि v पॉजिटिव किस में होता है। अगर v नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस हो गया, अब v पॉजिटिव है, आइडिया लेना पड़ रहा है। यानी तो कहां से हमने हाइपरबोला पढ़ाया? कभी हमने पढ़ाया क्लास 10 के स्टूडेंट को कि हाइपरबोलिक कर्व इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के ग्राफ में आता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजीज, बहुत इजी होता है बोलना कि पेपर इज इजी, बट उसको दिए गए टाइम में उनकी माइंडसेट को समझते हुए एक बार सॉल्व करके देखेंगे, देन यू विल एग्री कि दिस पेपर इज नॉट इजी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज, तो आपको अब तो पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स है, हाइपरबोला बन रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें यू और वी की डायरेक्शन से पता लगाना है कि ये लेंस कौन सा है। Now what would be the magnification if the object is placed between f and 2f of the above lens? अब कॉन्वेक्स लेंस में जब हम 2f पे लाते हैं तो सेम साइज आ जाता है, 2f से f के बीच में आते हैं तो उसके बाद मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मैग्निफाइड इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन 3 पार्ट 1। Now coming to part 2, a resistance R is connected across a cell with a switch and a rheostat in series. A voltmeter is connected parallel across the cell. Current in the circuit is increased using a rheostat. यहाँ पर यही मेन लाइन है कि करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हाउ विल द वोल्टमीटर रीडिंग चेंज होगा? तो नाउ वी नो दैट ईएमएफ का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट इट इज टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अब हमें जो पूछा गया है वोल्टमीटर की रीडिंग मींस टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वी, V means I into R.
IR मतलब जितना भी करंट आ रहा। अब हमें क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें EMF का कोई जिक्र नहीं, यानी EMF कांस्टेंट ही रह रहा है। यानी कि अगर हम इसमें करंट को, उसने क्या बोला, करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज, तो अगर करंट इंक्रीज हुआ दिस EMF इज कांस्टेंट, तो इस मींस आपके पास टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। तो हाउ विल द वोल्टमीटर रीडिंग चेंज, तो इस केस में आएगा दैट इट विल डिक्रीज। नाउ जस्टिफाई योर आंसर, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दी, क्योंकि EMF कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू IR पे डिपेंड कर रहा है। नाउ वी आर, इफ वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस भी सेम दी हुई है, रेजिस्टेंस को भी उन्होंने चेंज नहीं किया, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप पे डिपेंड कर रहा है। तो वी आर इंक्रीजिंग द करंट, तो टर्मिनल वोल्टेज विल डिक्रीज। In third part, define natural vibrations. So natural vibrations are the periodic vibrations of a body in the absence of any external force, or you can say they are ideally present only in vacuum. How is this vibration different from damped vibration? तो ये तो बहुत easy topic आया, इसमें कोई तो easy question है. This vibration different from damped in terms of their amplitude. So if we are talking about amplitude, तो amplitude will remain constant in the case of a natural vibration, and for damped vibration amplitude will obviously decrease. तो एम्पलीट्यूड को ही लिया गया क्योंकि एक ही मार्क का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का टोटल है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़े से और पॉइंट अगर साथ में देना चाहते हो तो विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें सम लॉस ऑफ एनर्जी, सम पॉइंट्स यू कैन आल्सो गिव, बट 1 मार्क ही मिलना है। अ मेटल पीस ऑफ थर्मल कैपेसिटी 40 जूल per Kelvin. Thermal capacity means C dash is given as 40 joule per Kelvin. Absorb 800 joule. Q is given as 800 joule of heat. Calculate the rise in temperature. Now we know the formula for C dash is equal to Q upon delta T. So here delta T is asked in the question, so it will become Q upon C dash. The value of Q is 800 and C dash is 40, so it will become 20. केल्विन में है तो केल्विन में ही वी हैव टू गिव द आंसर। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल पीस इज 20 केल्विन। इन एन एसी जनरेटर नेम द पार्ट विच हैज द फॉलोइंग फंक्शन, इंटेंसिफाइज द मैग्नीफाइड फील्ड, यानी उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो किसका, कौन करता है ये, सॉफ्ट आयरन कोर। व्हेन वी इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर इट विल intensify the magnetic field. Second is maintains electrical contact between the rotating parts and external circuit. तो कौन कौन ये पार्ट कर रहा है, अब ये AC जनरेटर है तो स्प्लिट तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लिप रिंग विद ब्रशेस। तो ब्रशेस का आपको कंसेप्ट देना है इसके अंदर, और स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस। Give 2 differences between nuclear fission and nuclear fusion. It is of 2 marks. तो फर्स्ट तो आप इसकी डेफिनेशन यू कैन गिव, न्यूक्लियर फिजन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल ऑलमोस्ट सेम पास। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 light nuclei combine to give a heavy nucleus. Second is you can also write that they can nuclear fission can happen at ordinary temperature and pressure, but nuclear fusion happen at a very high temperature and pressure 10⁻⁷ Kelvin. And सबसे important point जो student should know about the differences, for the same mass energy released is less than in fission, और उसमें much more than fission, fusion में ज्यादा होती है। दिखता है ना उल्टा इसका, लेकिन होता नहीं है। Now give 2 differences के बाद next question is a monochromatic ray strikes the surface of identical prism A, B and C at different angles of incidences. The diagram below shows their refracted rays. Study the path of these refracted and identify in which of the diagram the angle of incidence is maximum. तो यहाँ मैं आपकी बुक में ही बने हुए 3 डायग्राम से इनको कंपेयर कर रही हूँ। इफ आई एम टेकिंग हेयर कि नीचे इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स, नीचे की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन इन योर बुक एज 30। आई एम जस्ट टेलिंग कि क्यों मैंने ये लिया है। देन हेयर क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर, इट इज नियर अबाउट 70, एंड यहाँ पर सेम रह रहा है, पैरेलल जा रहा है तो ये 48 है आपकी बुक में। इफ यू गो थ्रू दीज डायग्राम्स इन योर बुक इटसेल्फ, तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज नियर अबाउट, आपको पता है इसका तो खैर 48 में पता ही है, दिस इज 30। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम। तो अब आप इससे आइडिया ले सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में मैक्सिमम आ रहा है, जिसमें रे अपवर्ड जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम इन बी
Angle of incidence is minimum in A and angle of incidence is equal to angle of emergence. This is the case of C. जब दोनों equal होंगे तो ये हमारा minimum deviation की condition हो जाएगी and refracted ray become parallel to the base of the prism. With this, section A is over. Now you can check your answer and tell me clearly in the description box that how many marks you are losing or are you are getting centum in section A. Thank you for watching till the end. I know 1 or 2 MCQs are still controversial, so I will still have a deep thought on them. Thank you.